CPL 1 डे 2 का पहला राउंड। क्लोज द डोर। फर्स्ट राउंड के लिए इस प्रकार से है। It is for correct answer you get 20 points. For no answer 0 points. For wrong answer -0 points. Okay. This CT round kind of thing. Okay. आप तैयार हो? पहला प्रश्न इधर चलिए। Group 1 elements are also called as. So wrong answer. Wrong answer. Good. Question is passed. Alkali metals is the correct answer. Alkali metals correct answer. Question 2, Arjun. Group 2 elements are called as. Group में कोई भी आप alkaline earth metals correct answer. B. Group 11 elements are called as. Correct answer. Only metals. Nakul. Group 15 elements are called as. Nicogens. Nicogens. Correct answer. Group 16 elements are called as. Chalcogens. Correct answer. Chapter is simple. First round for second question to this. What is the name of the element with atomic number 101? Not the UPSC name. What is the name of the element with atomic number 101? Mendeleev is the correct answer. Arjun. Official name of element with atomic number 103. Lawrentium is the right answer. B. Atomic number 108. Atomic number 108. Huh? Hazium. Right answer. Hazium. Nakul. Atomic number 111. 111. आप डिस्कस करिए और कोई भी करेक्ट आंसर एटॉमिक नंबर 112 112 का ऑफिशियल नेम क्या है? करेक्ट आंसर तो अपन नहीं लास्ट का फॉर्म है। तो यहाँ समाप्त होता है राउंड नंबर 1। एंट्री इनटू राउंड नंबर 2। सेकेंड राउंड में हम प्रवेश कर चुके हैं और दूसरे राउंड में मार्किंग स्कीम इस प्रकार से है। +20 for correct answer, no answer 0 points, wrong answer -10. This is the marking scheme for round number 2. So round 2 का पहला सेशन है डेफिनेशन राउंड। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन बोलना होगा, जो वर्ड में बताऊंगा उसको आपको डिफाइन करना है और परफेक्ट डेफिनेशन, जो भी इंपॉर्टेंट
खाते उस डेफिनेशन में होना चाहिए, वो सारे एलिमेंट डेफिनेशन में नहीं है तब पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। You miss out even a single part is required but you do not have. मुद्दे की बात आपने सब बोला, मुद्दे की बात नहीं बोला, कोई फायदा माइनस करेंगे, चिंता मत करो, माइनस करने का। तो पहला प्रश्न रजिस्टर के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन बताएगा, डिस्कस कर लीजिए और फिर you'll put up the mark on the board। कि मैं दूर ज्यादा तुमको वॉइस लिखती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी यस, फिर से बोलो। Energy required to remove computer gases atom is पास एनर्जी रिक्वायर्ड, करेक्ट आंसर आयोनाइजेशन gaseous atom will give resistor -10 and Arjuna +20, -10 +20 to Arjuna। Question to Arjuna, electron affinity pass to beam, energy release, correct answer -10 to Arjuna +20 to beam, it is the energy release not required। Question 2 beam, nuclear charge, pass Nakul, I'll count 5, 1 2 3 4 5, time up Sahadev, 1 2 3 4 5, pass distance, 1 2 3 4 5, pass Arjuna। The force of attraction between the nucleus and the electron is called as nuclear. Correct answer. Arjuna could give 20 points. Arjuna has scored once again 20 points past question. Question 2, Nakul, screening effect. Screening effect. One, two. the repulsion between the electrons of two constituent shells in an atom is known as screening. Correct answer. Correct answer. 20. Question 2, Sahadev. Electronegativity.
क्या खुद ही कंफर्म करो, सही है सर, टेंशन मत लो। करेक्ट आंसर, टेंडेंसी टू द पुल इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकेंड राउंड का सेकेंड सेशन, क्वेश्चन 2 रजिस्टर। आपको मैं दो एलिमेंट्स बताऊंगा, ये पूरा राउंड वैसा ही है वर्सेस, यहाँ पास होगा नहीं। आपको अगर कुछ भी नहीं बोला, उसने बोल दिया पास तो पास होगा, गलत बताया तो पास। तो दो एलिमेंट, दो एलिमेंट में आपको बताऊंगा, आपको बताना है वर्सेस मतलब किसका हाईएस्ट, जो ही मैं बताऊंगा हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एफिनिटी रेडियस, जो ही मैं बोलूंगा वही सब। फिजिक्स के लिए क्वेश्चन है, इन दोनों में से किसका है हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 1? हु हैज द हाईएस्ट IE1? सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम में किसका IP1 हाईएस्ट है? वन, टू, थ्री, फोर। नहीं, हाईएस्ट कौन है उतने ही, दोनों में से हाईएस्ट कौन? Na is highest is a wrong answer, ये है गलत जवाब, -10। Mg has higher IE1 because along the period ionization enthalpy increases. Arjun, who has highest IE2? Magnesium or sodium? IE2. Sodium is the right answer. Sodium has higher IE2. IE1 का ऑर्डर अलग है, IE2 अलग है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के, बिकॉज सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो स्टेबल हो जाता है, इसका IE2 ज्यादा होता है। अगला प्रश्न, तो सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, जितने भी MCQs पॉसिबल है कवर किया है, सिंपल MCQ। क्वेश्चन 2 बीम, हु हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वर्सेस नाइट्रोजन। Oxygen has higher electron affinity. Is the right answer? Is the right answer? Aditi, can you make chits? कितने यहाँ पे 4, 8, 12, 6 लोग हैं। 12 के बाद तुम कितने हो? 5, ये क्यों 11, 11, 12, 23, 23 चिट्स। फटाफट बनाओ। नेक्स्ट राउंड है चिट राउंड, समझेगा। अभी अगला प्रश्न किसके लिए है? नकुल के लिए। Who has higher ionic size? Greater ionic size? Al3 plus, Na plus, Al3 plus और Na plus में टक्कर, ग्रेटर। भी बताओ, मुझे क्या पता। रॉन्ग आंसर, नहीं है, सही जवाब है। क्वेश्चन 2 सहदेव, who has higher IP? Who has higher IP? बेरिलियम और कार्बन, बेरिलियम एंड
कार्बन में टक्कर। IV मीन्स आयनाइज स्ट्रेंथ। One, two, three. इतना डिस्कस करके क्या फायदा हुआ? 20 मार्क का फायदा हो गया। सही जवाब। 20 जवाब। चिट स्टडी। सो अगला राउंड हमारा है चिट राउंड। इट्स बोनस राउंड। नो नेगेटिव मार्किंग। सिर्फ सही जवाब के लिए +20 मिलेगा और चिट राउंड में सिर्फ हमारे पास 4 क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी के नाम चिट में होंगे क्योंकि बोनस है और किसको बोनस मिलेगा वो आपका नसीब तय करेगा। ये चिट्स जो है उसमें से हम नाम निकाल, जिसका भी नाम आएगा किसी ग्रुप से आ सकता है। हो सकता है चारों नाम सेम ग्रुप से आ जाए। ये तो भाई तुम्हारा ग्रुप नसीब के ऊपर डिपेंड है। किसी ग्रुप के ऊपर मतलब कोई भी नाम ना आए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो चिट बोनस राउंड हम चिट निकालेंगे, जिसका नाम आएगा उससे ही प्रश्न पूछेंगे और ग्रुप को नहीं बताना है, उसको ही बताना है। 4 लकी मेंबर्स कौन है? लेट्स सी। फटाफट चिट्स बनाए क्या? हाँ? पास करो ना दूसरे ग्रुप को भी। अबे चिंगड़े, चिट्स जितने तुमने सब रखे अपने पास, जितने 6 रख के बाकी दो ना, वो बनाएंगे ना अपना नाम। न्यू एवरीबॉडी नेम क्या? उस ग्रुप को भाई चिट्स दे दो तुम, 5-5 4-4 जो भी है वो अपना अपना लिख के देंगे। हम बने क्या? नहीं, इसे फाड़ दिया ना, पेपर्स पढ़ चुकी है ना। गिव फास्ट पिक। तुम बस तुम्हारा शीट दे दो। है ना। जो भी ग्रुप का चिट्स रेडी है आप यहाँ दीजिए, वो पेपर दे दो उनको, फाड़ लेंगे। सर आप इधर आइए। आपको ना चेक करना है, जो भी ग्रुप चिट्स देंगे ना, तो चेक उस ग्रुप में सब नाम अलग अलग भाई वो ग्रुप में जितने उतने देंगे ना। नाम चेक करो। ये कलयुग है, भरोसा नहीं है लोगों का। डबल ट्रिपल वो बोलेंगे, तुमको सब आता है ना, 4 सिर्फ तुम्हारे नाम पे ही बनाते हैं। ऐसा बुद्धि में ख्याल आ सकता है, पर उससे पहले आप समझ जाना आए कौन कर रहा है। जिस खेत के आप मूली है ना, उस खेत को क्या बोलते हैं? किसान। नहीं, उस खेत को सींचने वाला तो सींचते कौन? सींचना बोलते हैं ना। मैंने सींचा है, मतलब आप उसी खेत से निकले हुए मूली। मैं ट्रैक्टर हूँ, ठीक है। बराबर है सारे। जब फटाफट क्विक क्विक, बिकॉज़ आज बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी टाइम जा रहा है। टुडे सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। अगला राउंड बहुत बड़ा है, अगले राउंड के अंदर अराउंड 30-40 क्वेश्चन है। नेक्स्ट राउंड वेरी बिग राउंड, समझेगा। ध्यान रखिए।
है पेशेंस। क्विक क्विक एवरीबॉडी, भाई तुमको देने में कितना टाइम लग रहा है? हाँ, एक ही ग्रुप गड़बड़ कर सकते हैं, वो ले लो आप, गड़बड़ नहीं करेंगे, बाकी लो ले लो आप। उधर ही मेधावी लोग बैठे हैं, दो तेजस्वी लोग बैठे हैं जिनके दिमाग में ख्याल आ सकता है और किसी के दिमाग में नहीं आता। मेरे ही स्टूडेंट है ना, मैं जानता हूँ कोने कर डब्बा ओपन है हमारे। चलिए चीट मिक्स कर दो प्रॉपर, इधर डाल दो यहाँ पे बीच में। हाँ जो हीरा वो नसीब है, उसका नसीब उसको खींच के ले जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला चीट निकालने के लिए हमारे सामने आने वाले क्या करना, निशांत जी आएंगे और पहला चीट निकालेंगे। देखते हैं किसका नाम इसमें होगा, बताइए नाम। निशांत शंतनु गाड़े फर्स्ट। यस द ग्रुप कैन बी साइलेंट नाउ। अब बस शंतनु को ही जवाब देना है, कोई और जवाब नहीं देगा। मैं बताऊं, देखिए बोनस राउंड ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं। आपने सही दिया तो 20 पॉइंट मिलेंगे, नहीं दिया तो कोई दिक्कत, गलत दिया तो भी कोई दिक्कत। और ये राउंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कोई भी जवाब दे सकता है, ठीक है। पर आजू बाजू से सिग्नल्स मिले तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे, याद रखिए। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज 1 2 3 4 5। Correct answer, Cesium. Correct answer. This is B. छोटा B। छोटे B को मिले हैं 20 पॉइंट, 20 पॉइंट्स। अगला चीट जल्दी से आप निकालिए। अर्चित, ये वही अर्चित महावीर है अर्जुन, तो युद्ध भूमि में आने के बाद युद्ध ना करने की बात कर रहा था, फिर मैंने किसी तरह उसको बताया युद्ध करो, अर्जुन युद्ध करो, और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। देखते हैं अब क्या होता है, टेंशन बहुत होता है। ये तो वो श्लोक मुझे याद है गीता का, कौन श्लोक है गोरा की, वे पर तुझ शरीरे में, स्टार्टिंग क्या उसका, वे पर तुझ शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संशते हस्तात् त्वचैव परिदह्यते। अर्जुन कांप रहा था शरीर उसका, पसीने छूट रहे थे, गांडीव भी हिल रहा था, हाथ से छूट रहा था। वो जो परिस्थिति अर्जुन की युद्ध में भी वैसा ही आज हर्षित का पोजीशन यहाँ पे लग रहा है। देख क्या करता है हर्षित। आपके लिए प्रश्न है, मोस्ट तेजस्वी लोग जो पीछे बैठे हैं, आप शांत। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। करेक्ट आंसर। अर्जुन युद्ध जीत गया, 20 पॉइंट बोनस। यस क्या बात है, देखो आखिर जीत हो जाती है, कृष्ण है ना। अगला प्रश्न, अगला चेक आप निकाल, क्या नाम आपका? श्रेयस, श्रेयस देश पांडे। कोई बात, उससे नसीब बोला ना मैंने, तेजस जाधव। क्या नसीब है ना, तेजस्वी लोग वहां पे, तेजस जाधव। क्लोरीन इज डैश मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल। Chlorine is dash most electronegative in the periodic table. No, बोलो। Why? Fourth most correct answer. अर्जुन बहुत अच्छा है। यहाँ पे 6 लोग में से एक के नाम नहीं आ रहे, यहाँ पे 5 में से एक तो आ गए।
चार ही अभी दो नाम आ गए, बोलते नसीब का खेल। आखिरी चिट, आखिरी चिट, ये जो उड़ के जा रहा है उसको भाग जाए, कौन भाग रहा है? देखते हैं कौन है जो चिट में से ही भाग रहा है। तो सुना है भैया लाइफ में तो लोग भागते हैं क्वेश्चन से, उसका नाम भी भाग रहा है, किसका नाम है देखते हैं तो कौन, इसके नाम मिटने सकती है, क्यों भाग सकते हैं शुक्र। ये है विवेक अवार्ड। विवेक अवार्ड बताइए, who has the highest electron affinity in the periodic table? Chlorine, correct answer। तो देखा आपने नसीब का खेल। तो दो ग्रुप में से दो लोग बोनस है, बाकी तीन ग्रुप में से एक भी नाम नहीं आया, तो भी अपना भाग्य कैसे देख लीजिए This round is over. This was the bonus round. तो दो टीम ने बोनस प्राप्त किया है 40 पॉइंट्स का। अगला राउंड, टाइम कितना है मेरे पास, अपना स्पीड वाइज बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड इज 1-to-1 राउंड। टेंशन मत लीजिए, इसमें डिस्काउंट भी मैं नहीं चुनूंगा, दूसरा ग्रुप भी नहीं चुनेगा, जो ऑनलाइन में ऑडियंस है वो भी नहीं चुनेंगे, बल्कि जो ऑफलाइन आज यहाँ पे ऑडियंस आए हैं वो भी नहीं चुनेंगे। आपकी मर्जी है अपने ग्रुप को खड़ा करना है। डिस्काउंट पर आगे सुन लीजिए, ट्विस्ट भी तो होगा। तो हर एक ग्रुप को हम 4 क्वेश्चन पूछेंगे, लास्ट 4 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक जन ही खड़ा हो सकता है और सेकेंड टाइम चांस मिलेगा नहीं, ठीक है। तो डायरेक्टली 4 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस 4 चलता रहेगा, ठीक है ना। हर एक ग्रुप का 4 खत्म होगा, फिर नेक्स्ट को 4 ऐसे ईच ग्रुप विल गेट 4 क्वेश्चंस, ओके। एंड योर चॉइस, पहले मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, पहले आपको खड़ा होना, ट्विस्ट नो डिस्कस करना है, तो फिर 1-to-1 किया हुआ उसमें बताऊंगा पूरा सुन लीजिए। पहले आपके ग्रुप में से एक जन सामने यहाँ पे आएगा और फिर क्वेश्चन में बताऊंगा, फिर वो जवाब देगा। अगर अब मार्किंग स्कीम सही जवाब दिया तो मिलेंगे 30 पॉइंट, 30। गलत जवाब दिया तो -20 पॉइंट, नो जवाब 0 पॉइंट्स, नो जवाब 0, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छे थोड़े इसमें और ट्विस्ट करूं क्या, और एक ट्विस्ट देता हूँ। देखो मैंने सीक्वेंस में ऐसे लिखा है 1 2, मैंने 4 क्वेश्चन का मैंने बनाया 5 सेट्स, ठीक है, मैंने बनाया 5 सेट। यू कैन चूज एनी सेट, द ग्रुप कैन चूज एनी सेट। अब किस ग्रुप को पहले क्वेश्चन में पूछूंगा उनको चूज करने का मौका मिलेगा, चिट बताएगा। जिस ग्रुप मेंबर का नाम आएगा उनको पहले क्वेश्चन हम पूछेंगे, जो सेट वो चाहते हैं उस सेट पे। क्या बात है, और डिस्काउंट पे डिस्काउंट है यार, इतना डिस्काउंट। प्रज्ञेश कौन सा ग्रुप में, युधिष्ठिर ग्रुप बोले आपको क्या चाहिए, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5, किस सेट से प्रश्न आपको चाहिए, सेट नंबर 3 चाहिए। सेट 3 के लिए पहला क्वेश्चन के लिए कौन आएगा यहाँ, युधिष्ठिर ग्रुप से पहला मेंबर हमारे सामने यहाँ पे है आलोक आहेर। बोर्ड को टच मत करना बस। आपके लिए प्रश्न है, ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, पीरियोडिक ट्रेंड बताइए, मेटालिक कैरेक्टर का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड बताइए अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, नो डिस्कशन। along the period in non-metal
नहीं बस इंक्रीज डिक्रीज उतना ही बताना। अराउंड द पीरियड इंक्रीज डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज डिक्रीज। मेटालिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, अराउंड द पीरियड और डाउन द ग्रुप, अराउंड द पीरियड डिक्रीज, डाउन द ग्रुप नहीं। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। मेटालिक कैरेक्टर अराउंड द पीरियड डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस 30 पॉइंट। नेक्स्ट कौन है, गा जाओ नेक्स्ट। आपको मैं देता हूं 3 आयंस, उसको आप ऑर्डर में अरेंज करिए। सबसे बड़ा, उसके बाद कौन, छोटा, उससे छोटा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। आपको मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आयंस को बताना है। फर्स्ट ये, फिर ये, फिर ये। आपने इंक्रीजिंग बता दिया तो फिर आप कर जाओगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए आयोनिक साइज का। आपके पास 3 आयंस, Cl माइनस, F माइनस, I माइनस, Cl माइनस, F माइनस, I माइनस, डिक्रीजिंग ऑर्डर। Cl माइनस, F माइनस, I माइनस। I minus, Cl minus. Correct answer. That is the correct answer. 30 points. Next, अरे फटाफट आओ यार, सारी तो है। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अरेंज करना है। सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, why I2 of sodium is greater than I2 of magnesium? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम से ज्यादा है, क्यों? आप हिंदी में बोल सकते हो, मराठी में बोल सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो, बोल सकते हो, बंगाली में, ये लैंग्वेज टॉपिक दे रहा है, इसे समझते हैं। नो आंसर। कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको, बिकॉज सोडियम स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। नो आंसर के लिए -50 नहीं है। रजिस्ट्री ग्रुप का हो चुका है। सृष्टि वाइकर, सहदेव ग्रुप, सेट नंबर 3 हो चुका है। सेट 1, सेट 2, सेट 4, सेट 5, सेट 1। यस, हु वांट टू कम फर्स्ट? एक जन तो नेक्स्ट स्टडी रहना समय। आपके लिए प्रश्न है पहला, कोई भी 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताइए, फॉर्मूलास, नाम नहीं। हाँ, 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के फॉर्मूलास। एक भी फॉर्मूला गलत हुआ तो नेगेटिव में जाएंगे। फॉर्मूला ही चाहिए, 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के फॉर्मूलास। सोच लीजिए, अगर बताना है बताइए। इसको देख के मुझे डर लगता है, इतना टेंशन रहते हैं बोलो। आप फॉर्मूला मतलब, फॉर एग्जांपल किसने मुझे पूछा सोडियम ऑक्साइड, उदाहरण है ये, एग्जांपल आप वापस कर सकते हो, ठीक है ना। सोडियम ऑक्साइड इज एग्जांपल फॉर बेसिक ऑक्साइड, तो Na2O इज सोडियम ऑक्साइड, तो मैं बोलूंगा Na2O बोलूंगा बेसिक ऑक्साइड। वैसे आपको जो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड जितने भी है उसमें से कोई भी 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के फॉर्मूला मुझे बता।
तीन ही नहीं तो नो नो आंसर. ओके, नो आंसर. नेक्स्ट, एम्फोटेरिक मेटल्स एलिमेंट्स तो आप जानते हैं, सब बेकार करोड़ जन की परंतु मैंने तो पूछ लिया फॉर्मूला, टेंशन आ जाएगा. तो आपको सिंपल है, नहीं बताऊंगा, ऐसे सिंगल क्वेश्चंस है. सेट वन था ना आपका. हाँ, आपको मैं तीन एलिमेंट्स दे रहा हूँ, उसको आप अरेंज करिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. इंक्रीजिंग ऑर्डर. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. इंक्रीजिंग ऑर्डर. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी. Carbon, nitrogen, oxygen is the wrong answer. माहिती. हाँ ठीक. 1, 2. No answer. Right answer is CON. CON. Nitrogen will dominate oxygen. मैं आपको तीन एलिमेंट्स दे रहा हूं, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता. ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन. ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अरेंज. इंक्रीजिंग ऑर्डर कम से ज्यादा. यहाँ पे टेंशन आ जाता है. Iodine is the wrong answer. It is a wrong answer. Iodine, bromine, chlorine. वो थोड़ी फर्स्ट एलिमेंट वहां पे, फर्स्ट एलिमेंट तो क्लोरीन है. फर्स्ट एलिमेंट तो क्लोरीन है. ये सारा सेट किसको होना चाहिए था? यही तो है नसीब वाली बात. नेगेटिव दिया क्या उनको? -22. चलो बुरा मान रहे हो. आखिरी प्रश्न. अगर ये प्रश्न का उत्तर सही जवाब उन्होंने दे दिया तो कम से कम नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा और 10 पॉइंट स्कोर हो जाएगा. अगर उन्होंने गलत जवाब दिया नेगेटिव और बढ़ जाए. तो क्या सृष्टि वाइकर अपने ग्रुप को इस राउंड में नेगेटिव से बचा सकती है? क्या लगता है आपको? देखते हैं. लेट्स सी. अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस. इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है? एस्ट्रेनियम, सिलिकॉन्जियम एंड ब्रॉन्टेनियम. मजाक कर रहे हैं. ऑलरेडी टेंशन में और उड़ाने में मजा आता है. You have O2 minus, O minus and O. O2 minus, O minus O. इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए साइज का.
इंक्रीजिंग में छोटा से बड़ा। O minus हमको लगा कि वो पॉजिटिव देंगी और उसने दिया। सही जवाब। ओके, क्या है ग्रुप का टेंशन। अब अगला ग्रुप कौन हमारे सामने आने वाले हैं और उनको किस प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं, दिखा दीजिए। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ ना, तो आप सीक्वेंस बोलेंगे अपने आप आएगा। मैं डिक्रीजिंग जब इंक्रीजिंग में बोलेंगे तो गलत जवाब। यहाँ पे इंग्रेजी का ही मैथ है। भाग्यश्री मतलब नकुल ग्रुप, बिल्कुल नहीं आना है, कोई भी आ सकता है। Who would like to come? अच्छा पहले बताइए सेट कौन सी है आपको? 2 सेट खत्म हो चुके हैं। सेट 1, सेट 3 लोअर, सेट 2, सेट 4, सेट 5। सेट 5 ओके, मतलब यस विल कम क्विक। आपके पास 3 लोग हैं, उनको आपको आयनिक साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। Sc2 माइनस Se सेलेनियम 2 माइनस Se Sc2 प्लस 2 प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। Sc2 माइनस Se एंड Sc2 प्लस। Sc2 माइनस एक है, सिर्फ Se दूसरा है और एक Sc2 प्लस। करेक्ट आंसर। ये मिलना चाहिए किसको? आपको, जो गया इनको। यही तो बात है। अगला है क्विक क्विक आना है आपको, वेस्ट माय टाइम। 3 एलिमेंट्स मैं आपको दे रहा हूं, आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। सोडियम, नो राइटिंग। सोडियम, आयन, क्लोरीन। सोडियम, आयन Fe एंड क्लोरीन। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ना आप दो साइम ग्रुप के हैं ना ही से पीरियड के हैं। एक एस ब्लॉक एलिमेंट, एक डी ब्लॉक एलिमेंट और एक ई ब्लॉक। क्या देवयानी सही जवाब दे पाएगी? डिक्रीजिंग, हाईएस्ट से लोएस्ट। सबसे हाईएस्ट सोडियम, आयरन। आपकी अपेक्षा बिल्कुल सही है। सही जवाब, सही जवाब। सोडियम, आयन फिर क्लोरीन। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोलेट्रोपॉजिटिव, पी ब्लॉक मोलेट्रोनेगेटिव और बीच में है डी ब्लॉक। आपके लिए प्रश्न तो बहुत ही आसान आया है, नसीब। पर क्या ये आसान प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? वो टैलेंट, एक होता है नसीब और एक होता है खुद का टैलेंट। नसीब साथ दे, टैलेंट नहीं है। टैलेंट है, नसीब साथ में दे, दोनों साथ में चाहिए। प्रश्न इनका है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डैश। करेक्ट आंसर, ट्रांसमिशन एलिमेंट। आखिरी प्रश्न, who would like to come? 3 एसिडिक ऑक्साइड के फॉर्मूलाज बताइए। 3 एसिडिक ऑक्साइड, यू वांट फॉर्मूलाज। एक भी फॉर्मूला गलत हुआ तो नेगेटिव मार्क मिलेगा। नो सिग्नल्स, no answer is a, they'll get no points. No answer, no points.
फॉर्मूला देखो, आप देखो भी कहाँ वीक है आप सही फॉर्मूला में अटक रहे हो, उसका मतलब सेक्शन आपका वीकर सेक्शन इस चैप्टर का। इट वर्क अपॉन दैट। किसी और भी फॉर्मूला मैंने सदर ग्रुप वो भी अटक गए, ये भी अटक गए, मतलब आपको डाउटफुल है फॉर्मूलाज के ऊपर, दैट मींस आपको सेक्शन वीकर सेक्शन है। बाकी वो देखना है कि आपको आ रहा है। नेक्स्ट अब 2 ही ग्रुप बचे हैं ना, कौन कौन से? Which 2 groups are winning now? These 2, Arjuna and Bhim. हाँ? साफ सफाई चालू वहाँ। आप सब मेरे पॉकेट में जा रहे हैं। You are very safe. गर्ल्स का नाम करो ना, दोनों बॉयज है वहाँ पे, गर्ल्स लग रहे क्या आपको? श्रवण, श्रवण, ओके, दिस इज बी। आपके पास 2 सेट्स बचे हैं, कौन कौन से? सेकंड एंड फोर्थ, सेट 2 सेट 4, सेट नंबर 4, ओके। कौन आएगा पहले? क्विक, दूसरा भी रेडी रहो तुरंत। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पीरियोडिक ट्रेंड बताइए, डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पीरियोडिक ट्रेंड। अच्छा नहीं बताओगे, नो आंसर, ओके। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड। नेक्स्ट, अरे तुरंत रेडी होने बोला ना मैंने, यहाँ वो गए, दूसरा यहाँ पे रेडी रहो। नेक्स्ट कौन आने वाला है? यहाँ पे खड़े हो जाओ आप। समय कितना बचा? लेसन देना, लेसन देना है। क्या है, क्या करना है? क्या? अभी वो पहला था ना, सेकंड, हाँ सेकंड क्वेश्चन। 2 एलिमेंट आपको मैं दे रहा हूँ, बता दो साइज बड़ा है, वो है लेटर साइज। फ्लोरीन, नियॉन, फ्लोरीन एंड नियॉन में बड़ा कौन? डोंट नो, ओके, आंसर इज नियॉन। वैन डर वाल्स। अगला कोई भी 3 बेसिक ऑक्साइड के फॉर्मूलास बताइए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूलास तो आपको बचपन से पढ़ते आए। तीन ही बताना पड़ेगा। बहुत पढ़ाई करते हैं बच्चे, सिंसियर स्टूडेंट। सिंसियरिटी इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि? बुद्धि हमारे हाथ में नहीं, गॉड गिफ्ट। सिंसियरिटी हमारे नहीं, बताओ। नेक्स्ट, 3 आपको दे रहा हूं मैं, 1 मिनट, इनके साइड कौन बोला? 3 आयन दे रहा हूं आपको, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज में अरेंज करना। S2 माइनस सल्फाइड आयन, S2 माइनस, O2 माइनस एंड F माइनस, सल्फाइड आयन, ऑक्साइड आयन एंड क्लोराइड आयन। F माइनस, S2 माइनस
O2 minus F minus. Increasing order. F2 minus. Increasing. F minus. O2 minus F2 minus. सही जवाब, सही जवाब। अब बस एक ग्रुप बचा हुआ है, छिपने की जरूरत नहीं है, यही ग्रुप एक ही सेट है। यस, कौन आएगा? सेट नंबर 2। कोई भी 3 न्यूट्रल ऑक्साइड के फॉर्मूला बताइए। इससे सिंपल क्वेश्चन है संसार में, और कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड। नहीं है, अरे क्या नहीं है, कितने 4 है, और ऐसे भी उनको मैंने फॉर्मूला से ही याद कराया था। O NO N2OH4 CO NO N2OH4 फॉर्मूला से ही पढ़ा था उसको। नेक्स्ट, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस। आपके पास है O2 माइनस, O के ऊपर 2 माइनस, N के ऊपर 3 माइनस, N3 माइनस, F के ऊपर माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस, F माइनस। इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। O के ऊपर 2 माइनस, N के ऊपर 3 माइनस, F के ऊपर माइनस। O के ऊपर 2 माइनस, N के ऊपर 3 माइनस, F के ऊपर माइनस। इंक्रीजिंग ऑर्डर बता, छोटे से बड़ा। हाँ, F-O-N करेक्ट आंसर। देखो आगे नहीं पता करके कितना आंसर दे रहा है। सेट नंबर, एल्युमिनियम का I1 I2 I3 का ऑर्डर बताओ। एल्युमिनियम का I1 I2 I3 का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो? आयनेशन का I1 सही जवाब। एल्युमिनियम का हो या किसी का भी ऑर्डर हमेशा सेम ही रहेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपके पास है कार्बन सिलिकॉन नाइट्रोजन, कार्बन सिलिकॉन नाइट्रोजन। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, उसके बाद तो बताना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। क्वेश्चन पूछ रहे आंसर बताओ। नहीं सर, पूछ रहे हो। कार्बन सिलिकॉन Si नाइट्रोजन। कार्बन नाइट्रोजन सिलिकॉन इज ए रॉन्ग आंसर। नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट अल्टरनेटिव एलिमेंट है, वो हाईएस्ट होगा। अब कार्बन सिलिकॉन सेम ग्रुप के, डाउन ग्रुप अल्टरनेटिविटी डिक्रीज है। नेक्स्ट कार्बन फिर सिलिकॉन, मतलब सबसे लोएस्ट सिलिकॉन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन। ओके, so here we end, right, this 1 to 1 now. Run out the
अब हमारा आखिरी राउंड है बजर राउंड। ये ऐसे एक ही, ये मेरा है, मतलब मेरे सर ने मुझे दिया था। हाँ यस, नो नो है तो हाथ ऊपर करने का ही नहीं। मतलब हमारा ऑनलाइन क्लास होता है ना अभी, या तो हम लोग पहले चालू है हमारा भी, 1.5 साल का कोर्स है। मैं कोचिंग करता हूँ ना संडे संडे में, तो उस टाइम सबका वीडियो ऑन रहता है, क्वेश्चन जिसको आता है वो आप ऐसे दिखाते हैं। अब वो समझ में आया क्या, ऑडियो ऑफ रहता है। यस, ऐसा और एक अलग अलग उन्होंने दिया है ऑनलाइन सेशन। आखिरी राउंड बजर राउंड में से 3 ही क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चंस। एंड बजर राउंड के रूल्स सुन लीजिए। सही जवाब को मिलेंगे 30 पॉइंट, गलत जवाब के लिए मिलेंगे -40 पॉइंट। और वो जो ग्रुप से -40 होगा वो 40 पॉइंट बाकी 4 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। मतलब जिस ग्रुप ने गलत दिया उनकी बैंड उतनी बातों का आना दिया, 10 पॉइंट फुकट के मिल जाएंगे। देखते हैं कौन है यहाँ पे दानवीर, तो अपने पॉइंट दूसरों को दान करना चाहेगा। हाँ जिसको उसमें से ना, तो कहाँ से निकालूंगा। आपके एग्जिस्टिंग 40 पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे और वो 40 में से और को बांट देंगे ग्रुप के अंदर। पहला प्रश्न, अच्छा, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव? खड़ा हो जाओ, कौन है? ओके, 5 रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट भी है बजर राउंड में, जो जज करेंगे किसने पहले खड़ा, कौन पहले खड़ा हुआ है। ठीक है, आदि सामने इधर आ जाओ। तो कौन पहले खड़ा हुआ, अगर मैं कंफ्यूज हूँ आप बताएंगे। तो बजर राउंड में प्रेशर होता है। 50 पैसे गेम के लिए आप तेरा लाखों रुपए का बोर्ड, थोड़ा आगे खड़े हो जाइए। पहला प्रश्न, क्योंकि ये देखिए चैप्टर ही आसान है, तीनों क्वेश्चन इतना सिंपल है कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी जवाब दे सकता है, पर आप जवाब दे सकते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है। तो बहुत आसान है, यहाँ स्पीड चाहिए, इसीलिए आप प्लीज तीनों अटेंटिव रहिए। यू हैव टू सी ऑल द ग्रुप्स, ठीक है ना। सारी ग्रुप की ओर ध्यान ही, कौन पहले खड़ा होता है आपको मुझे बताना है। मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इन 13th ग्रुप, 13th ग्रुप में सबसे अधिक मेटालिक एलिमेंट कौन सा है? यस, 1 2 3, wrong answer, that is the wrong answer। अर्जुन है ना, हाँ वो माइनस कोड डालो और बाकी सारे ग्रुप में प्लस चेक कर सकते। थैंक यू पूरे देश को, थैंक यू। पहला दानवीर यादव को थैंक यू बोलिए। देखते हैं कि अगला दानवीर कौन है। अब देखिए जबरदस्ती दान ले रहे हैं। अगला प्रश्न, which element in the periodic table has highest density? Yes, yes। आपको अपना अपना तरफदारी करना नहीं है। ऑनलाइन वाले आपको क्या देखते हो, पहले खड़ा हुआ था। मैं भी तो हूँ, पागल।
मैं इसलिए तो रखा, मैं कंफ्यूज होता हूँ, अब तो हम और कंफ्यूज हो, बिकॉज 2 वोट मिल रहे हैं देवयानी को, 2 वोट मिलते हैं, 7 वोट आपके लिए कोई नहीं। ये 4 जज यहाँ पे है, 2 जज बोलते हैं देवयानी, 2 जज बोलते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कौन आंसर देगा, ये तय करने के लिए एक और प्रश्न पूछो। अब ये प्रश्न किसके लिए है, पॉइंट ही मिलेंगे इसमें। आप दोनों में जो पहले, अभी खड़ा तो ऑलरेडी है, और खड़े तो नहीं हो सकते आप, जो पहले आंसर बता देगा, अभी साउंड, जो पहले आंसर बताएगा उसको मौका मिलेगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है ना। डन एवरीबॉडी। हाँ, तो प्रश्न है, प्लीज ध्यान दीजिए, कौन पहले आंसर, और सब भी ध्यान दीजिए जिसके ग्रुप में वो नहीं है। प्रश्न है, 2 + 7 + 7 + 2 कितना होता है? 2 + 7 + 7 + 18. 18 is the right answer. 18 is the right answer. Unexpected है? सर मैथ कहाँ से आ गया? हो सकता है टाई ब्रेकर था, तो टाई ब्रेकर। ओके, बताइए आंसर क्या आपको? 1। इतना सब करके फायदा क्या हुआ? टाई ब्रेकर जीता, लास्ट आंसर क्या ऑप्शन होता है? सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? हाँ सही है, जवाब +30 +30। हाँ हाँ, आखिरी प्रश्न, जज रुको, और जज आपको नजर चारों तरफ ऐसा होना चाहिए, और ऐसा मत करना पार्शियलिटी, हाँ गर्ल्स गर्ल्स को बॉयज बॉयज सपोर्ट, ऐसा जज मतलब इम्पार्शियल होता है, सब एक समान। नोबल गैसेस हैव डैश एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, तेजस 1। आंसर 0 है, परंतु लोएस्ट होने गलती भी नहीं है। सही जवाब, सही जवाब। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद के लिए। Now it's time to see the score. आज के स्कोर अबे खुद से खुद कैलकुलेट मत करो। Yudhishthir group +20 -20 cancel. 90. Yudhishthir group 100 points. Arjun. इसको कैंसिल करना मेरे, मैं जिसको -20 -50 कैंसिल, +30 +30 कितने हो गए भाई? माइनस है क्या? यहाँ 10 है क्या? ये कितना हो गया? 50 60 80 140 170। बीम बीम का एक भी नेगेटिव स्कोर तालियां होंगी। 80 120 160 पॉइंट। अपुल का भी एक नेगेटिव पॉइंट, ये तालियां होंगी। 80 90 170 210 पॉइंट। सहदेव
60, 70, 100 पॉइंट। आज के बोनस, आज का बोनस पॉइंट किसको क्या मिलने वाले हैं? पहला बोनस एब्सेंटीज के लिए। कितने एब्सेंट ग्रुप में आपके? 0 0। कितने एब्सेंट ग्रुप में आपके? ये 5 है ना? हाँ ना, उसे सबको ध्यान दें। कितने एब्सेंट है? 0। अगला बोनस और इससे कितना बोला था मैंने? 20 पॉइंट। अरे कोई इंडिस्प्लेन कर ही नहीं रहा है, कैसे मैनेज? तो बराबरी करेगा स्कूल, मजा नहीं है। अगला बोनस आज का है फॉर गुड टीम। जिस टीम में पार्टिसिपेशन ऑब्जर्व कर रहा था, हर क्वेश्चन में टीम कैसे पार्टिसिपेट कर रहा। मोस्ट इंटरेक्टिव टीम मुझे लगे वो 2 टीम, जहाँ पे इंटरेक्शन सफिशिएंट था, लग रहा था कि वो टीम है, और बाकी अपने अपने बलबूते पे ही चला रहे हैं। ऐसे 2 टीम मैंने आज के लिए सेलेक्ट किया जो मोस्ट इंटरेक्टिव टीम है, उनको मिलेंगे 20 पॉइंट का बोनस। वो टीम्स है बीम, now the total scores are like this. 120 score, this is 180 Arjun, Beam with 200, Nakul with 230 and Sahadev with 130. These are the final scores. तो डे 2, तो कल के स्कोर, तो ये कल के आज के मिला के डे 2 में कौन लीड कर रहा है, क्या आप जानना चाहते हो? Who is leading in day 2 in this 2 days cumulative scores? Right. कल इधर 95 था, आज 120 कितना हो गया? 200 and day 2 ये हो गया 200 बराबर है 215 पॉइंट cumulative score। अर्जुन कल पॉइंट थे 40 और आज 180, कितने हो गए? 220 पॉइंट। 3 से कल 40 200 हो गए 240 पॉइंट। नकुल कल 50 230 280 पॉइंट और सहदेव कल 70 आज 130 200 पॉइंट। तो फिलहाल लीडिंग पोजीशन पे नकुल ग्रुप डे 2 में नकुल रनिंग अप टीम है बी, जो सेकंड पोजीशन पे है फिलहाल। फर्स्ट सेकंड पोजीशन में नकुल और बी, पर बहुत कट टू कट टक्कर है, सबका ही 200 ऊपर स्कोर है, कुछ भी हो सकता है। 2 दिन और ओके। सो होपफुली जो आज के क्वेश्चंस हमने किए हैं उससे भी आपको बहुत आइडिया मिला होगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस
आपको देखना है किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस लिए मैंने, और समझना है वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं, उस टॉपिक से, बिकॉज लिमिटेशन है, हर क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हैं। और जिस टॉपिक से क्वेश्चन में लिए हैं, कैसे क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर से। या 13th ग्रुप में हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर जो है एल्यूमिनियम का है। जनरली ट्रेंड क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, तो हाईएस्ट होना चाहिए टैलियम, हाईएस्ट होना चाहिए कायदे से टैलियम, पर ऐसा होता नहीं, एक्सेप्शन है। 13th ग्रुप में एक्सेप्शन है, एल्यूमिनियम हाईएस्ट होता है, बाकी सारे ग्रुप में ऐसा नहीं होता। जो लास्ट एलिमेंट मेटालिक होता है, मोस्ट मेटालिक होता है, 13th ग्रुप में एक्सेप्शन, इसको कुछ पूछा बताओ। सो अच्छा, दो चीजें अच्छी बात यहाँ पे है, एक तो डिसिप्लिन सारे ग्रुप के अंदर, दूसरी बात हेल्दी कंपटीशन, दैट्स वेरी गुड। Two positive things of this year CPL, unlike last 2 years. लास्ट 2 ईयर में हर बार डिसिप्लिन के लिए उनको नेगेटिव नेगेटिव कोचिंग को होते हैं। इस बार अब तक किसी ने नेगेटिव लिया नहीं, बहुत डिसेंट बच्चे इस बार ना, एक दो लोग हैं मिस्टीरियस, और उतना भी नहीं जितना लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर ज्यादा ही बदमाश, पर रिलेटिवली गुड गुड बैच। नेक्स्ट सेशन हमारा किसके ऊपर होगा, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। कल केमिकल बॉन्डिंग में तो बहुत वाइड वैरायटी ऑफ पॉसिबल है, ह्यूज सेक्शन। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर भी, to prepare thoroughly for chemical bonding। एंड बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कल थर्ड डे है, टेंशन तो कल भी था, टेंशन तो आज भी है, और कल भी रहेगा, और परसों भी रहेगा, पर परसों वाला टेंशन पीक पे रहेगा, एलिमिनेशन है ना, एलिमिनेशन पीक, जैसा देते हैं बिग बॉस, जब उनका एलिमिनेशन होता है ऐसा टेंशन रहता है। तो परसों वाले दिन बहुत ज्यादा टेंशन आपको रहेगा, जाहिर सी बात। If you are taking tension, that means you are serious about it. That's a good sign, actually. अगर पूरे ग्रुप में टेंशन दिखाई देता है, तो एक पॉजिटिव साइन भी है, बिकॉज हम सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। जो प्रिपेयर करता है ना, उसको टेंशन होता है, जो प्रैक्टिस करता है, तैयारी करता है, उसको ही हारने की चिंता होता है, जीतने का जुनून होता है। जो प्रिपेयर ही नहीं करते हैं, उनको टेंशन ही नहीं, हारो या जीतो क्या फर्क, मैंने मेहनत नहीं किया ना, मैं मेहनत कर ही नहीं रहा हूँ, और जिस चीज की मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ उसकी मुझे चिंता क्यों होगी। तो अदर वे हैप्पी विद टेंशन, दैट मींस यू आर प्रिपेयरिंग इट, द टेंशन शोस दैट यू आर प्रिपेयरिंग, एंड आपका एफर्ट्स ही अधिक इंपॉर्टेंट है। फॉर मी दैट इज विनिंग, मेरा पर्पस टीचर का यही था कि आप प्रिपरेशन का इंटेंसिटी बढ़ाओ, जीतने के लिए पढ़ेंगे आप, पढ़ाई चक्कर में है ना, उस चक्कर में, और बेटा आप दूसरे पढ़ना ही और कैसे है, स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी एवरी स्मॉल पॉइंट, बिकॉज़ कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये टेंशन में आप हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना है, ये मेरा पर्पस, अगर आपको पता नहीं है तो बता रहा हूँ, आपको ऐसा पढ़ना है, एवरी स्मॉल पॉइंट, हर एक नोट जो लिखाया है ना, यू शुड एवरीथिंग यू शुड ट्राई टू रिमेंबर, जितना तो फिर ऐसा पढ़ना पड़ता है। हाँ, अभी घर में गए, कुछ पढ़ा नहीं, कल सुबह आ गए, आपको जुनून जीतने का, तो आप ना ही सीपीएल का बेनिफिट उठा रहे हो, ना ही इस गेम का, either way you are a loser, even if your team wins you are a loser।
It's not just matter of which team is going to win. It's a matter of every individual. जो ऑडियंस बन के ऑनलाइन बैठे हुए हैं ना, उनके लिए विन लूज कब होगा? जब वो पर्पस सॉल्व कर लेंगे। हर दिन जब उस इंटेंसिटी से वो पढ़ के आएंगे, और मान लीजिए यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पर उधर बैठ के अगर वो देखना है उनको जितने क्वेश्चन सर ने पूछा है उसने मुझे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उसे तुरंत उस दिन वो रेक्टिफाई कर लेते हैं। जो बंदा ये कर रहा है, जो स्टूडेंट, उसके लिए ऑलरेडी विन हो चुका है, इज ऑलरेडी विनर। उसको घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, इज विनर, इज ऑलरेडी है। And if somebody is not taking this seriously and not studying with that intensity and not rectifying his mistakes, then they are losers. And कौन विनर है कौन लूजर है, भले ही हम यहाँ पे उसको अनाउंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के बारे में हम जानते नहीं है, परंतु आपका भाग्य उस निश्चित कर देगा। असली विन लूज कभी नहीं मालूम चलेगा जब आपका जेईई और नीट एग्जाम होगा। It is actual win for you, मतलब स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके लिए छोटे छोटे मुकाम। तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है सीपीएल में सीखना, ना कि जीतना। क्या? सीखना। लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ मच आई लर्न टुडे, व्हाट आई लर्न टुडे, आस्क योरसेल्फ। अगर मेरा लर्निंग आज बढ़ा है सीपीएल से, तो सीपीएल का फायदा हुआ है, तो आप विनर। कोई लर्निंग नहीं हुआ, बस टाइम पास करे थे बैठ के यहाँ पे, कोई फायदा उसका। Everybody is a winner, everybody is a loser. Win or lose is your choice. It's only your choice. तो जो भी बनना चाहता है विनर, चॉइस आपका है। Individually you can win, individually you can lose. यहाँ घोषणा तो ये सब फॉर्मेलिटीज है। किसी एक टीम को तो जीतना है, कंपटीशन है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन इंडिविजुअली आपको अपने आप को जिताना, उसके लिए